you have to study a poem that is composed by Pablo Neruda. As you know that he has taken birth in 1904 and died in 1973. His pen name is Neftali Ricardo Reis Bosalto, and he was born in the town of Parral in Chile. Means that Neruda has taken birth in Chile, and Chile's town Parral, where he has taken birth and spent his time, जहाँ कि इन्होंने जन्म लिया और अपने समय बिताया. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. Neruda's poems, इनकी जो कविताएं हैं, are full of easily understood, कि आप पूरी तरह से आसानी से ये समझा जा सकता है इनके इमेजेज को इन्होंने क्या कहना चाहा है. which make them no less beautiful, and with this quality you find that there is the beautifulness and its beautifulness is not decreased. इनकी जो खूबसूरती है इस सिंप्लिसिटी में ये कहीं कमी नहीं, इसलिए कहता है इन सिंप्लिसिटी ऑलवेज लिव्स ग्रेटनेस. साधारणता में हमेशा मानता छिपी हुई रहती है. इनकी जो भाषाएं हैं ये बिल्कुल ही इजली अंडरस्टूड है, इजी लैंग्वेज है. दैट इज वाई इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट, इफ यू गो थ्रू दिस पोएम, then you may understand that his way of saying and his gists of saying is very heart touchable and very instructive for human beings. मानव जाति के लिए बहुत ही इंस्ट्रक्टिव है, ज्ञान देने वाली है, ज्ञान भरने वाली है. That is why he won the Nobel Prize for Literature in the year 1971, और इसीलिए इनको लिटरेचर में 1971 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया. इन दिस पोएम Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. और इसमें क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, बिल्कुल ही शांति से इंट्रोस्पेक्शन यानी शांति की आवश्यकता को इन्होंने गहनता से अध्ययन किया, इंट्रोस्पेक्शन, और क्रिएटिंग और पैदा किया क्या, ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि मानव में, ह्यूमन बींग्स में समझ विकसित हो, समान समझ विकसित हो, कि मनुष्य मैन may understand that human being has to do good work on this earth. They have to follow the moral things, moral beings, and may adjust according to the way of the development. Here you may see a picture. यहाँ आप एक पिक्चर देखते हो. In that picture what you find? In that picture you may find that here is the picture of a man. It has hands, you may find, and thereafter this picture shows that under, means that as you go then you find that it is inside the earth and here roots. And on the upper hand you find that there are different types of leaves, you may find it. What does this picture show? You may see that this picture reminds us human being have to save
द नेचुरल सराउंडिंग्स, मानव जाति को नेचुरल सराउंडिंग्स, प्राकृतिक वातावरण को बचाना है। बट व्हाट वी फाइंड टुडे, ड्यू टू द रैपिड डेवलपमेंट of human beings, rapid development of infrastructure and development of the cities, towns, factories are going to destroy our natural surroundings. That is why man has to suffer a lot. Through this poem, the poet has given, the title is Keeping Quiet, means that he may try to make the human beings understand not to be noisy. We have to bear all those things. We have to convince our matter, our thinking very silent way. That is why he says, now we will count to 12 and we will all keep still. Very simple. We will count to 12. हम लोग 12 तक गिनेंगे. And we will all keep still. और फिर हम लोग क्या रहेंगे? शांत रहेंगे. Why? ये जो 12 है, 12 इंडिकेट करता है कि in our year there are 12 month. हमारे पास जो वर्ष है उसमें 12 मंथ होते हैं और 12 मंथ है, इसलिए क्या करना है कि हमें इस 12 तक गिनना है, यानी 12 महीनों में कैसे एडजस्ट करना है अपने आप को, ह्यूमन बींग्स को, ये देखना है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, यानी एक बार, वंस एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फेस मीन्स चेहरा, अर्थ मीन्स पृथ्वी, पृथ्वी के चेहरे पर अर्थात पृथ्वी पर, मीन्स एक बार जब आप पृथ्वी पर आते हो, लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, तो उसमें क्या करते हो जब आप पैदा लेते हो, वी कांट स्पीक एनी लैंग्वेज, हम लोग कोई भाषा बोल ही नहीं सकते हैं, बिकॉज एट दैट टाइम वी आर इन्फेंट व्हेन वी टेक्स बर्थ फ्रॉम द वूम्ब ऑफ आवर मदर, जब अपनी माँ के पेट से हम पैदा लेते हैं उसमें हमारे पास कोई लैंग्वेज नहीं होता है, कुछ बोल नहीं पाते हैं। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, तो फिर जो लाइफ है वो क्या करता है, कुछ सेकंड के लिए, जैसे कि लोगों को लगता है कि कोई भाषा आता नहीं है तो बच्चे चुप रहते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और कभी कभी ऐसा होता है जन्म लेने के बाद कि हमारी बाहें भी ज़्यादा फड़फड़ाती नहीं हैं, वो स्थिर रहती है। Through this poem, the poet wants to convince us, as human beings takes birth, he has no language, he has no knowledge how to speak, and sometimes when he suffers, when he comes in this, on this earth, once he cries, but thereafter that infant comes in silent way, and it seems that there is no energy. Same way, the earth, when the earth evolved, at that time the earth has not so many things. Once there was a time, at that time it was, as it is believed by science, it is full of hotness, but as time is going on, its temperature decreases, and thereafter one after another cells creature evolve on this earth, so that after many years this earth is full of trees and different types of creatures. But at present time we find that the earth is in the position not to speak a word, लेकिन अभी वर्तमान में पृथ्वी इस स्थिति में है कि कुछ बोल नहीं रहा, अर्थात वह करा रही है। देखें आगे क्या कहते हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रस, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस।
इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। एक्सोटिक मोमेंट मतलब होता है वैसी क्षण जहां कि आप स्तब्ध हो जाते हो। यानी कभी कभी होता क्या है कि जब आप किसी डेवलप्ड स्टेट में जाते हो, डेवलप्ड कंट्री में जाते हो, तो वहां की उस तड़क भड़क को, उसके उस लार्ज बिल्डिंग्स को, गॉर्जियस बिल्डिंग्स को देखकर आप का जो दिमाग है वो स्तब्ध हो जाता है कि हाउ दिस कंट्री इज डेवलप्ड सो फार, सो गुड। एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस व्हेन द पोएट हैज इमेजिन्ड एट दैट टाइम a time will come when all things, all activities will stop, and now at present time we find that world is going in that same condition, everything has stopped। अभी जो वर्तमान स्थिति है, संसार उसी स्थिति में पहुंच चुका है। सारी गतिविधियां स्तब्ध हो चुकी हैं, सारी गतिविधियां बंद है। और ये कल्पना कवि ने उस समय किया था कि सडन स्ट्रेंजनेस, अचानक ये विचित्रता आएगी कि हम लोग क्या करेंगे, विदाउट इंजन, विदाउट रस, ना कोई इंजन चलेगा ना कोई भीड़ भाड़ होगी। लॉकडाउन हुआ क्यों? बिकॉज ह्यूमन हैज डन सो मैनी रॉन्ग विद द अर्थ, दैट इज वाई मैन्स माइंड इज पॉल्यूटेड। इसलिए मनुष्य का दिमाग भी पॉल्यूटेड हो गया है। इन next stanza the poet has tried to convince us the condition of the sea and the fishermen। कवि कहना चाहते हैं कि समुद्र और मछुआरों की स्थिति क्या है इसके विषय में। fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, और समुद्र की जो पानी है, समुद्र का जो पानी है, जब हम लोग पृथ्वी अपनी गतिविधि स्थगित कर देगी, लोग अचानक इस कंडीशन में आ जाएंगे कि समुद्र का जो क्रियाकलाप है वो अस्थिर हो जाएगा, तो फिशरमैन वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वे व्हेल मछली को भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे। क्यों? इसका मतलब यह है कि लोग, पीपुल वांट टू गेट मोर एंड मोर मनी, दैट इज वाई दे किल वन आफ्टर अनदर प्रीशियस एनिमल्स, आइदर इट इज व्हेल्स, सील और मेनी अदर क्रीचर। वाई? दे वांट टू टेक इट्स फैट, इट्स लिवर, कॉड ऑयल, टू डू कॉस्मेटिक थिंग्स, टू प्रिपेयर कॉस्मेटिक थिंग्स by killing these types of fishes। इस तरह की मछलियों को मार कर लोग क्या करते हैं, कॉस्मेटिक थिंग्स बनाते हैं, यानी साज सज्जा के सामान के लिए बनाते हैं, फेस क्रीम बनाते हैं, तो वह मछली को मारा जाता है। लेकिन यहां कवि कहते हैं कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। ये कल्पना करते हैं कि लोग व्हेल को भी हार्म नहीं करेंगे, यानी लोगों में समझदारी आ जाएगी। लोग जब पीड़ित होंगे, when the people's eager was so boundless, then he will do many harmful works, and when by nature he suffered, he will suffer, then his all activities will stop, and at that time fishermen will not kill the fish, और तब नहीं मारेंगे ये। and the man gathering salt and men's work only to प्रिपेयर साल्ट, और मनुष्य का जो काम होगा सिर्फ समुद्र से नमक निकालना होगा। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, टू फुलफिल आवर लस्ट, टू बी वेल्दी, टू बी रिच, वी मे डू मैनी रॉन्ग वर्क्स एंड वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यूबल क्रिएचर्स। वुड लुक एट द हर्ट हैंड्स, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और तब वे देखेंगे अपने उस घायल हाथों को, घायल हाथों को, कि मीन्स दैट व्हेन फिशरमैन goes to catch whales, the whale also attack the man,
and at that time he may find himself in bad condition. But when a man cannot harm, when a man will not harm any creature, then the creature will not harm the man. लेकिन जब मनुष्य किसी क्रिएचर को हानि नहीं पहुंचाएगा तो वह क्रिएचर भी मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाएगा. In the next stanza you may see, or in the next portion of the poem you may see that there is a figure of woman, and in that figure you find that in her hand there is दीपक, लाइट. इसके हाथ में दीपक है. What does she show? The woman shows that for human beings there is the light. मनुष्य के लिए प्रकाश होगा. Means that man may get enlightenment. मनुष्य को ज्ञान मिलेगा. And after getting enlightenment, after reading, after studying, they may know the reality of the earth, the reality of the human beings. पढ़ने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद लोग अपने रियलिटी को जानेंगे कि क्या होता है. देखें थ्रू दिस स्टेंजा. Those who prepare greenwash, wash with gas, wash with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. Those who prepare greenwash, कहते हैं कि वे व्यक्ति जो प्रिपेयर करते हैं ग्रीन वार्स, हरी लड़ाई का, हरी लड़ाई, हरित क्रांति. तो अभी जिसको कि आप कल्पना कर दो जैविक हथियार की कल्पना करते हो, बहुत जगह बन रहा है, बहुत सारे कंट्री इस पर लगे हुए. क्या वे चाहते हैं कि अदर कंट्री को अपने कब्जे में करना. और वार, ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, गैस के साथ भी लड़ाई. वार्स विद फायर, आग के साथ लड़ाई. विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, और ऐसा विक्ट्री होगा कोई सर्वाइवर नहीं होगा. इसका मतलब यह है, द पोएट वांट्स टू से, इफ द वार ब्रेक्स आउट इन द वर्ल्ड, यदि संसार में लड़ाई होती है, इट विल बी वेरी डेंजरस, ये बहुत खतरनाक होगा. एंड एवरीवेयर देयर वर गैस, देयर वर फायर, एंड ऑल दोज ग्रीन थिंग्स विल बी डिस्ट्रॉयड, और जितनी भी हरी भरी चीजें हैं सब के सब बर्बाद हो जाएगी. वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड, और क्या देखेंगे उनके जो भाई हैं संसार में, बिकॉज इन होल यूनिवर्स, in whole world we find that all human beings are brothers and sisters. But when war breaks, then people doesn't know who are they. लोग ये नहीं जानते वो कौन है. They only want to attack on the other. सिर्फ वे एक दूसरे पर अटैक करना जानते हैं. At that time what find? Then we find that there is no hope, there is no clean cloth, and if the clean cloth will given, then it will be given at the time of the death, after the death, on the corpse of the body. मरे हुए शरीर पर ही वो क्लीन क्लॉथ आता है. यानी यदि आप मीन्स ह्यूमन बीइंग will not understand the fact of this earth, fact of the world, then the will destroy and we can't do anything, doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. What I want should not be confused. And then the poet has tried to say we have not come in confusion. We have to be very clear what we want, what human beings want.
बिल्कुल ही स्पष्ट होना चाहिए कि मनुष्य क्या चाहता है, मनुष्य को कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। विथ टोटल इनएक्टिविटी, और यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, टोटल इनएक्टिविटी, ऑल एक्टिविटीज, ऑल क्रियाकलाप, जितने भी क्रियाकलाप है सब क्या हो जाए, स्टॉप हो जाएंगे। और लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, और जिंदगी क्या है, व्हाट इज लाइट। और यहां देखो ये जो दीपक है ये क्या इंडिकेट करता है कि लाइफ है जो है एज द बर्निंग ऑफ लाइट, जिंदगी क्या है, जलती हुई दीपक है। व्हेन विंड्स कम और ब्लोज देन इट पुट्स आउट, जब हवा चलती है तो बुझ जाती है। इट मीन्स दैट इफ war breaks out in this earth then life will be destroyed। यदि वार छिड़ती है तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, ये जिंदगी का जो दीपक है वो खत्म हो जाएगा। I want no truck with death, that is why the poet says, मैं मरे लोगों से भरे हुए ट्रक नहीं चाहता हूं। क्योंकि जब अटैक होता है, आक्रमण होती है, जैसे अभी चाइना, जैसा कहा जा रहा है कि चाइना ने ये वायरस बनाया, हकीकत जो भी हो आगे पता चलेगा, और उसमें क्या हो रहा है कि लाखों के लाख लोग मर रहे हैं। इट इज़ नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। ये कल्पना कवि ने पहले किया था और आज हो रहा है। कभी कहते हैं कि मैं वैसा डेथ नहीं चाहता जो ट्रक भरा हुआ हो। इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम लोग का दिमाग एकाग्रचित्त नहीं होगा अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, ये सोच नहीं होगा कि हमारी जिंदगी चलती रहे अच्छी तरह से, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। मीन्स दैट इफ ह्यूमन बींग्स आर विल नॉट बी कॉन्शियस, then we find a time will come when all things will stop and for human beings there is a weak silence, और तब मनुष्य के पास चुप रहने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death, और हर जगह लगेगा कि मृत्यु का ही साया है और मृत्यु ही हमें डरा रही है। as you understand at present day now, every human beings who is affected, means that human beings who are affected with corona virus, you find that he is completely detached from his own kinsmen, अपने बिल्कुल घनिष्ठ आदमियों से वह बिल्कुल अलग हो चुका है। यदि किसी को कोरोना हो जाता है तो देयर इज नो ह्यूमैनिटी, कोई मानवता नहीं रह जाती है। ऑल मनी, प्रॉपर्टी and work, all things left there, he is without anything, but till now human being has not developed himself how to be conscious। अभी भी मनुष्य ये नहीं समझ पाया कैसे हम सचेत हैं। लोभ, ईर्ष्या, घृणा अभी तक लोगों में नहीं गया है। तो ये जो कंडीशन है इट इज वेरी थ्रेटनिंग, बहुत ही भयानक है, और तब आगे मृत्यु ही है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद अंतिम इस कड़ी में कवि कहना चाहता, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सिम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। शायद ये पृथ्वी हमें ये बताना चाहती है, बता सकती है कि जब एवरीथिंग सिम्स डेड, सारी चीज़ें मरणासन्न मालूम पड़ेगी, तो लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तो बाद की जिंदगी आपको जिंदगी में आ सकता है आनंद। Now I will count up to 12 and you will keep quiet and I will go, और कहते हैं कि हम लोग 12 तक गिने और तब हमारी जिंदगी अच्छी होगी। It is simple meaning of this poem.